मैं आप सबका महर्षि दयानंद सरस्वती व्याख्यान माला के इस 5वें व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। आज के व्याख्यान की अध्यक्षता के लिए हमारे पास उपस्थित हैं माननीय आचार्य यशपाल जी। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य अधिष्ठाता रहे हैं और आपने काफ़ी गुरुकुलों की स्थापना की है और आर्य समाज के बहुत बड़े एक विचारक और चिंतक रहे हैं। तो आज के व्याख्यान की अध्यक्षता माननीय आचार्य श्री यशपाल जी करेंगे और आज के विषय का जो प्रवर्तन है वह प्रोफेसर सीपी त्रिवेदी जो इंदौर से हैं वो करेंगे। व्याख्यान का विषय होगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सील्स हैं उन पर किस प्रकार से जो जीवन का विकास, मानव जीवन के विकास को उट्टंकित किया गया है, उनको उस पे डिपिक्ट किया गया है। इस विषय पर प्रोफेसर त्रिवेदी जी व्याख्यान देंगे। अब मैं माननीय प्रोफेसर त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और धरती मेरी माता है। ये हमारा वेद वाक्य है। पृथ्वी के ऊपर जीवन है और बाकी और कहीं जीवन नहीं है। ये और आप सब लोग वैदिक संस्कृति के वाहक होकर यहाँ आमने सामने हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ। Indus Valley quest of creation and life. The inscribed copper plates from Indus Valley civilization 2600 to 2000 BC. One of the plates bear 34 characters, which is the longest known Indian script inscription. Professor Shinde and Willis towards 2004 has hypothesized that the plates have consistent with use in copper printing as the earliest known printing device. It is inspired to search the use of copper tablets with 1, 2 or longest 34 characters. It suggests that the text may be descriptive or instructive and has a special purpose. It has been searched with the study with the above reference that the copper tablets may have been used for demonstration and teaching the symbolism. In this sense, the longest inscription with the men in yogic posture is like a textbook. The other tablets, one or two tablets with the different figures are like different lecture chapters. So to teach the students about the origin and evolution of the creation and life on the earth, this is text in Veda. The script and language changes with time, but symbols remain the same. Hindu Valley was the most advanced civilization. Now we have touched their height and can interpret the symbols. The inscription with 34 characters symbol explore the origin and evolution of the creation and life from fundamental energy with energy transformation. Einstein's equation K is equal to mc square. Life has evolved from single DNA with genetic recombination and cell division. Photosynthesis by plants is the source of life on the earth. It has been expressed on the copper plate with Vedic symbolism and may be distributed in large numbers with the printing device. The Indus Valley civilization was the most advanced civilization. Now we have touched their height and can interpret the symbols. Their connection with Egypt and Mesopotamia, Nature 25 May 2016 has reported evidence of Indus Valley civilization at least before 8,000 years. अर्थात इंडस वैली 8,000 साल कम से कम पुरानी है। अभी तक जो 5,000 साल का था वो नहीं है। It was connected with Egypt and Mesopotamia. The human teeth in wave of living person was found in Nahargarh that dates from 7,500 to 9,000 years ago, a point to tradition of proto-dentistry. Nature, April 2006. It means the Indus Valley was present before 8,000 years ago.
The excavated steatite clay seals and copper tablets are of very high quality and prepared with high technological skill to preserve them for permanent record. The copper plates have consistently used in copper plate printing as the earliest known printing device, Shinde and Willis 2014. The excavated starting clay seals and copper tablets are of very high quality with high technological skill. They have been prepared for permanent record and for demonstration and teaching. The electron microstructure of DNA engraved on the seal confirms their advanced technology. The tiny seals excavated from one place explore the origin and evolution of the creation and human history in chronological order. On one seal, pi has been explored. It shows that industrial civilization was much more advanced than our present-day civilization. The Vedic picture symbols on the seals and tablets have a vast ocean of knowledge in the background and complementary with the modern science. The discovery of DNA in Arthur Crick 1953. The ribosome translates DNA code into life. Vekatapam 2009. Hence, now we have further confirmed genetic evolution on the Earth. The seals and the copper tablets have been prepared for demonstration teaching with picture symbols and can be used in examination also. The student has to grab the picture symbol to explain its text in the text from Veda. The longest description with the main in yogic posture is like a textbook. The other tablets with one or two symbols with different figures are different lecture chapters to teach the student about the origin and evolution of the creation and life on the earth. With its text in Veda. Now we have touched their height. The development can interpret the symbol. The inscription with 34 character symbol explore origin and evolution of the creation and life from fundamental energy with energy transformation. Einstein's equation is equal to mc squared. Life has evolved from single DNA with genetic recombination and cell division. Photosynthesis by the plants is the source of life on the earth. It has been expressed on the copper plate in Vedic symbolism in heavily distributed large number with printing device. The discovery of single unified code was a successful experiment Bell's theorem in 1972 by Clausen and Freeman, David Bowman, and Alan Aspire in 1985. Higgs field space 2013. The underlying space has imparted mass to elementary particles with asteroids and planets. The recent discovery of a gravitational wave 2015 is akin to phonon. Phonon can be scattered by phonon in a crystal has opened a new window to discuss photon-phonon interaction as two distinct opposite forces interacting with each other at the molecular level. Lee et al. 2014. This is the theme. Origin and evolution of the creation and life, Vedic cosmology. ये 34 कैरेक्टर वाली सील है और इसके ऊपर 34 कैरेक्टर्स हैं with a yogi in the side. The man in yogic posture with a horn head and two long arms with a small art circle on the chest, a plant on the back side, a burner in front. There is a dot on the lower side of the left arm to show that the precious milk was shed once with the cosmological event. इस पिक्चर में योगी बैठा हुआ है और उसके चार सींग है, एक जीभ दिखाई दे रही है, एक डॉट चेस्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है और साइड में एक प्लांट जो है वो बता रखा है जिससे तात्पर्य है कि Krishna's milk was shed once with cosmological event and it is the source of life on the earth. Agni mile purohitam yajnasya devaritmijam hotaram ratnagatam. I invoke the Agni fundamental energy, who is the priest, Deva, fundamental particle, sacrificer, and reciter of the Sashti Yag, which is the structure of you.
The vital fundamental energy has manifested with its dualistic force, photon and phonon, which is the source of all. It has been laid down the foundation of the creation system, where phonon and photon with the broad spectrum are two complementary forces of nature. The fundamental energy has been imagined in the form of a parallel male Purushuk 1910-90. The eternal fundamental energy is working everywhere with its energy energy transformation and source of all. In the Purushuk, in the first four hymn, we have got laws of thermodynamics. The creation came into existence from eternal fundamental under the laws of thermodynamics with energy transformation. Einstein's equation is equal to m4. शीर्षा पुरुष उस पुरुष के फंडामेंटल एनर्जी की कल्पना जो है वो पुरुष रूप में की गई है और बताया गया है कि उस पुरुष के हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पांव हैं। इससे ये बता दिया गया कि फंडामेंटल एनर्जी इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, सर्वत्र उपस्थित है। A thousand head with Purush, 1,000 eyes, 1,000 feet on every side, pervading earth, he feels space 10 finger wide. वह सब दूर उपस्थित होते हुए मनुष्य शरीर के 10 अंगुल वाले स्थान में भी उपस्थित है, अर्थात सर्वत्र उपस्थित है। और जीवन का कारण जो है वह यह फंडामेंटल एनर्जी है। Fundamental energy has been imagined in the form of a primary male with innumerable head, eyes, and feet, who pervade the earth, and even above it, he fills a space 10 finger wide. It means in the heart of man. It indicates the fundamental energy universally present everywhere. The Purush is all that has been and that is to be. Purush evedam sarvam yadbhutam yadbhutam, अर्थात जो कुछ भी था, जो कुछ है और जो कुछ रहेगा वह फंडामेंटल एनर्जी है। इट इज द लॉर्ड ऑफ इमॉर्टल, फंडामेंटल एनर्जी इमॉर्टल विथ एक्सेस टू ग्रेटर स्पिल्ड बाय फूड। एनर्जी ट्रांसमिशन के द्वारा जो है यह इंक्रीज होती है। इट हैज बीन स्टेटेड दैट द फंडामेंटल एनर्जी इज इटर्नल बट ट्रांसफॉर्म्ड through which it increases, which is the food symbolically. The Lord of moderate means it remains constant in all state and imperishable. So mighty his greatness, ye greater than this. His Purush, all creatures are 1/4 of him, 3/4 eternal life in heaven. इस फंडामेंटल एनर्जी के 3 भाग ऊपर हैं और एक भाग ये दृश्य जगत जो है वो का सिर्फ एक भाग है। With 3/4 पुरुष went up on 4th of him again दिया। 3 भागों के साथ पुरुष फंडामेंटल एनर्जी ऊपर चली गई और एक का भाग जो है वो बार बार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इंक्रीज होता है। तो इसमें जो है फोटॉन जो है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और फोनॉन जो है उसको स्टिमुलेट करती है अंडर द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। From him Viraj was born. Again Purush from Viraj was born. As soon as he was born, he spread eastward and westward over the earth. It means आकाशीय स्पेस से, अंडरलाइन स्पेस से फंडामेंटल पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ और यही वापस जो है विराज से अगेन पुरुष was born. It means the Purush universe was born from the again Purush was born. Fundamentally, this because the condition first generated the Viraj, infinite resonant vibration wave. It is activated the dark matter with vital energy in action, with blast and light. The photon-photon interaction under the temperature pressure gradient of 6 seasons act as fuel for the creation. इसके ऊपर 4 हार्न बता रखे हैं और डीप बता रखी है। Horn head with tongue in the mouth. It means the 4 horn buffalo imitate. 4 horn buffalo imitate मतलब जो है ऋग्वेद 458 में ये बता रखा है कि fourth from this
The ocean sprang the wave of sweetness. Together with the stark, it turned to Amrit. That which is holy is mysterious title, but the god's tongue is truly Amrit's center. कि आकाशीय समुद्र से स्वीट वेव चली आ रही है, लहर चली आ रही है, और विद द स्टॉक इट्स टर्न टू अमृत, जो है इमोर्टल सोर्स है क्रिएशन का. That is which is holy is mysterious title, but the God's tongue is truly Amrit center. God's tongue is truly Amrit center का मतलब है कि इस सृष्टि का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, उसके ये चार कंपोनेंट है जो सृष्टि को विस्तारित करते हैं. और एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्पेस होती है, और जिसे गॉड्स के या देवों की टंग कहा गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स की जीवान का जुआ कही गई है. द गॉड टंग इज ट्रूली अमृत सेंटर. अर्थात जो इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खेल रहे हैं, जिसके कारण एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं, हमारा भी अस्तित्व उसी के कारण है. द एलिमेंट्री पार्टिकल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ओशन इज एन eternal source of creation and space with vital energy in the nucleus of atom, bind them in series with asteroids and planets. तो ये उसके कारण से वही जुआ उसको कहा गया. Let us declare about the name of this, and as this we sacrifice held up with homage. So let the drum hear, the praise we utter, the head, the four-horn buffalo imitate. अब हम उस दृश्य का वर्णन करेंगे जिससे इस सृष्टि को थाम रखा है. तो लेट द ब्रह्म हियर, द प्रेस वी अटर, द हेड, द फोर-हॉर्न बफेलो इमिटेट. चार सिंह वाली भैंस अवतरित हुई. जिस प्रकार से भैंस के दूध का सार घी में है, वैसे सृष्टि का सार इस क्रिएशन के जो चार एटम के चार कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी में, इसका सार है. ये इसका घट है, इसको बताया. जिस प्रकार से सृष्टि का सार एटम के चार कंपोनेंट है, वैसे ही जीव जगत का सार जो है वो चार डीएनए के चार क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है. ये जो चार सार है, इसका वर्णन इसने किया. 4 are his hearts, 3 are the feet that bear him. His heads are 2, his hands are 7 in number. Bound with a triple bond, they still roars loudly. The mighty God had entered into mortals. Chatvari Shanga Trayavasya Pada, Veshirse Saptasasvara, Pida Baddho Vasavo Rorvati Mahadeva Avivesh. 4 are his hearts. चार उसके सिंग है. ये चार सिंग एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है. 3 feet डीएनए जो है 3 ट्रिपलेट कोड के ऊपर काम करता है. ये चार बेस ट्रिपलेट कोड के रूप में अरेंज 64 कोड्स का निर्माण करते हैं, और ये 64 कोड्स के ऊपर ही सारी जीव जगत जो है वो उस पर निर्भर है. तो 3 are the feet, इसको 3 फीट का पांव कहा गया है. डेड बीएम जो उसको धारण करते हैं. हिज हेड्स आर 2, 2 हेलिक्स होते हैं डीएनए के अंदर, इसलिए कहा गया हिज हेड्स आर 2. हिज हैंड्स आर 7 इन नंबर, अर्थात तो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है, जिसे कहा गया 7 हैंड्स. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डीएनए जो है क्रियाशील है. बाउंड विथ ट्रिपल बॉन्ड, स्टिल रोर्स लाउडली. बाउंड विथ ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपलेट कोड के द्वारा इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है, और ये जो फैल रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा फैल रहा है. स्टिल रोर्स लाउडली, द माइटी गॉड हैड एंटर्ड इनटू मॉर्टल्स. और यही डीएनए जो है ट्रिपल बॉन्ड के कारण जनरेशन से मनोधर्माओं में कुलाचे भर रहा है. जनरेशन टू जनरेशन जो है ये फैलता चला जा रहा है. तो ये उसका आइलिन ट्रिपल्स, इसके 3 फेस ट्रिप्लॉइड रूप में दिखाई देता है.
तो ऑयल इन 777 षष्ठी को चलाने के लिए जो अनवरत षष्ठी चल रही है, वो ऑयल जो उसको फीड करता है वो ट्रिपल शेप में है, मीना वाइब्रेशन. The island triple chef the god had discovered laid down within the cow, concealed by the Panit. Indra produces one shape, sun another. By their power, they have formed the third from Vina vibration. The source of eternal fundamental energy is hidden in three, which feed the creation and life eternally. Sun, Indra means electricity, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉर्न एनर्जी के द्वारा यह सृष्टि को नियंत्रित करता है इंद्र, अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती है जिसके द्वारा प्रकृति बैलेंस करती है, वह इंद्र एक सोर्स है इस सृष्टि का. सन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं जो सृष्टि को पोषित करते हैं. तो सन दूसरा इटर्नल सोर्स है. और थर्ड वीना वाइब्रेशन, इसके द्वारा जीव जगत का आधार जो है वो फोनॉन वेव है. डीएनए से तो लाइफ की उत्पत्ति हुई है, और डीएनए इज लाइक ए वेसल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ एंड फोनॉन स्टिमुलेट इवेंट टू ओपन. तो फोनॉन वेव के कारण डीएनए स्टिमुलेट होता है और जीव जगत अस्तित्व में आता है. ये जीव जगत में जो ये अस्तित्व आया है, यही अपनी लाइफ साइकिल के द्वारा फैलता चला जा रहा फोनॉन वेव के द्वारा. फोनॉन इज इमॉर्टल एंड इट फॉलोज द मैनकाइंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. The living organisms have prepared the third eternal source with vibration from Vina, nectar word followed from him from generation to generation with new light. The seven sisters sprung from threefold souls, abiding in the three worlds that are heaven, earth, and air. The five tribes prosper. She must be invoked in every deed of fight. सरस्वती फोनॉन वेव जो है वह जीवन का कारक है, और सेवन सिस्टर्स sprung from threefold source, seven levels rays of light and seven levels of the wise. They together are coming on the earth from the sun, and they are the source of life. The five tribes prosper due to this, and it should be invoked in every deed of life. तो सरस्वती को जो है वो आवाहन करना चाहिए हर काम में, क्योंकि जो जीवन का कारक है वो फोनॉन वेव को सरस्वती कहा गया है. The seven sisters represent seven rays of visible light and seven levels of light. They are flowing in threefold manner and nourish five gross elements: air, water, sun, energy, and sky and earth. Matter with life in countless channels. The germ of the world, inside of all creation, spring to life and fill the earth and heaven. Even the firm rocks he clapped when passing over, when the five tribes brought a sacrifice to Agni. 10:45:6 Rigved. The five tribes means five gross elements: Panch Mahabhut, air, water, sky, energy, and matter. The assembly of these five with energy transformation is a sign of life to the resonant vibration. Hear all the gods my words. Saraswati give all together with Puruk and with holy thought. The Saraswati thought was the sign of existence with the chemical energy of food which generate thoughts in the mind for action. योगी के पीछे की ओर एक प्लांट ट्विग बता रखी, जिससे तात्पर्य है जिसके सर से गाय दूध को दूधती है और रंग बिरंगे पांव से पानी पीते हैं. अर्थात सूरज से आने वाली सफेद प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है और फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है. इस फूड को गाय, काइन, पशु पक्षी सब ग्रहण करते हैं, और गाय जो है वो दूध देती है इस फोटोसिंथेसिस के कारण, क्योंकि जो पौधे जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है वह
गाय का, गाय का, पशुओं का भोजन है और उसके कारण से वो दूध देते हैं। तो जिसके सर से गाय दूध को दूधती है और रंग बिरंगे पाँव से पानी पीते हैं, रंग बिरंगे पाँव से पानी पीते हैं, अर्थात प्लांट जो है वो जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। और सरस्वती थॉट वर्ड्स इंसाइन ऑफ एग्जिस्टेंस, सरस्वती फोनोन वेव जो है वह जीवन का प्रतीक है। और फूड मेटाबॉलिज्म जो है, जो भोजन हम करते हैं उसका फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे अपचय क्रिया होती है, और उस भोजन से जो है सरस्वती जो है हमें शब्दों से इंस्पायर करती है, बुद्धि देती है और जीवन चलता है। टू लॉन्ग, इस सृष्टि में इसके पुरुष के दो लंबी भुजाएं बता रखी है। तो उससे ऋग्वेद से ये लिया गया है, वेल्डेड देम विथ हिज आर्म्स एज विंग्स टुगेदर। Photon and phonon, though complementary, distinct opposite complementary forces in HRK, they held up the creation and life under space-time trapping. It has been explained by these two long hours. तो लॉन्ग के द्वारा फोटोन और फोनोन फोर्सेस को की ओर जो है संकेत किया गया है। इसके साथ में फोनोन वेव ने इसके साइड के हाथ में एक मार्क बता रखा है, जो ये बताता है Piscic milk was shed with the cosmological event. Piscic milk means chlorophyll pigment जो है, जो सिंथेसाइज लैब में नहीं कर सकते हैं, जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट के साथ जो है इसकी शेड हुआ था ये, और भोजन का फूड मेटाबॉलिज्म का कारक है। ये शिवस मेला जो हम मनाते हैं हर 12 साल में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, तो इसका तात्पर्य ये है कि कॉस्मोलॉजिक विशिष्ट पोजीशन में जब ग्रह आते हैं और सूर्य में जो एक्टिविटी होती है उससे ये डीएनए और क्लोरोफिल जो है शेड हुए थे, जिसका कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन चल रहा है सुचारू रूप से। तो ये दिवस बनाने का है। दूसरा, हमारे यहाँ पूरी पूजा में सारी चीजें रखी जाती है, तो कलश स्थापित के लिए किया जाता है। उस कलश में पत्तियां और नारियल जो है रख के जो है गर्भ पूजा के साथ में जो है वो स्थापित किया जाता है, और कोई भी जो फंक्शन होता है तब भी रखा जाता है। अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर ये जो कुंभ है वो पॉट है, डीएनए का प्रतीक है। डीएनए जो है वो वेसल है, इंस्ट्रूमेंट है लाइफ का, और पत्तियों से तात्पर्य है कि क्लोरोफिल जो है फूड मेटाबॉलिज्म का कारक है, वो बता रहा है। इसमें छाती के ऊपर एक स्पेस बता रखी है, योगी की छाती के ऊपर। उससे तात्पर्य है कि अंडरलाइंग स्पेस है इंपॉर्टेंट मास टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हिरण्यगर्भ संवर्त जाते भूतों से जाते पति रे काशी, सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ हुआ और वह हिरण्यगर्भ सबका स्वामी हुआ। अर्थात अंडरलाइंग स्पेस से जो पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उन्हें भार प्राप्त हुआ, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया है आज की भाषा में, गॉड पार्टिकल। तो हिरण्यगर्भ शब्द उसको जो है हिरण्यगर्भ कहा गया है, गोल्डन एम्ब्रियो। और इस गोल्डन एम्ब्रियो में वो सबका स्वामी हुआ, अर्थात स्पेस जो है वो सबकी स्वामी है। आकाशी उससे जो है देवों को भार प्राप्त हुआ, फंडामेंटल पार्टिकल्स को, और एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स जो है वो फॉर्म हुए। अब इसमें कहा गया है कि ये यूथफुल बुद्धिमान आदमी सोच ये होने के बाद कहाँ खड़ा रहा, ये सब सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद कहाँ है। तो उसका मतलब ये है जो फंडामेंटल एनर्जी सब दूर प्रेजेंट है और हमारे अंदर भी उपस्थित है, जो कपाल के अंदर जो दिमाग के और पेल्विक गर्डल उसमें वहाँ फंडामेंटल एनर्जी उपस्थित है। तो ध्यान के द्वारा इसको जो है रियलाइज किया जा सकता है कि ये फंडामेंटल एनर्जी कैसे कार्य कर रही है हमारे शरीर में। ये यूथफुल मैन इंक्वायर विद इन योर स्पिरिट
whereon the stood when he established all things. Rigved 10:81:4. He has expressed that the soul God fundamental energy has produced the creation, is present everywhere and within you also. The same has been described by President David Bohm and Alan Ospite in 1985. The force which binds the nucleus in the atom is unified. अर्थात यह जो फोर्स इस स्पेस में प्रेजेंट है वो यूनिफाइड है, जो सभी उपस्थित है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनिशेंट है। तो स्मॉल सर्किल चेस के ऊपर बनाने की ये बता दे, हिरण्यगर्भ बता दिया गया है। इसके नीचे बर्नर बता रखा है साइड में, जो है नीचे की ओर है। तो बर्नर से तात्पर्य है सोल इज द सन इज द सोल एंड आई ऑफ द क्रिएशन। तो सूर्य जो है वो जगत की आत्मा और आंख है, और इसका संदर्भ जो है ऋग्वेद में मिलता है। I saw far away from the smoke of fuel with fire. The mighty men have raised the spotted bullock. Mighty God means fundamental energy has raised the spotted bullock, and जो नेबुला फॉर्म हुआ उसके गर्भ में जो है एक्शन और इंटरएक्शन के द्वारा हीट एनर्जी सबसे पहले उत्पन्न हुई और ब्लास्ट हुआ, जिससे फोटोन और फोटोन जनरेट हुए और एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स का नाम वो फॉर्म हुआ। ऋग्वेद में ये रेफरेंस दे रखा है, I saw from far away from the smoke of fuel with fire that roses or high that beneath it. The mighty men have dressed the spotted bullock. This was the custom in the days of old time. अर्ली प्रीकॉस्मिक कंडीशन में ये नेबुला डेवलप हुआ और फिर गर्भ में जो है रिएक्शन इंटरएक्शन हुए, उससे जो है ये फॉर्म हुआ फोटोसिंथेसिस। योगी के बेक में एक पौधा बता रखा है, जिससे तात्पर्य कि फोटोसिंथेसिस जो है वो जीवन का स्रोत है पृथ्वी के ऊपर, जिसके सर से गाय दूध को दूधती है और रंग बिरंगे पाँव से पानी पीते हैं। अर्थात सूर्य से आने वाली 7 जो विजिबल लाइट की रेज किरणें हैं वो फोटोसिंथेसिस करती है, पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है और भोजन जो है वो बनता है। ये भोजन को गाय ग्रहण करती है और दूध देती है और रंग बिरंगे पाँव से पानी पीते हैं, अर्थात पौधे जो है वो जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। तो फूड मेटाबॉलिज्म इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन लाइफ इन द सेल बॉडी। डीएनए भी जो स्टिमुलेट होता है वह मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से एटीपी निर्मित होते हैं बॉडी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होता है यह हमें भी एनर्जी प्रदान करता है और डीएनए के रेप्लिकेशन में ये हेल्पफुल है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जो 7 बॉन्ड्स हैं उसके 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के बीच में, उनका जो कार्य, जो फंक्शन है वो इस मेटाबॉलिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर, वह इसको बता दिया गया है। इट इज ब्रॉट द फूड चेन्स एंड फूड वेव्स इन नेचर। ये जो भोजन श्रृंखला फॉर्म हुई है, जीव जीव से भोजनम, और फूड वेव्स और फूड चेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा हुआ है। और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है, यह इमॉर्टल है, यही सब दूर फैल रही है। पहले शुरू में सिर्फ एक सेल बना और एक सेल से जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा यह बायोलॉजिकल वर्ल्ड अस्तित्व में आया, जिसमें भोजन जाल जो है फैला हुआ है। The peasant bird is the sun. Let him who truly knows set down the track of this peasant bird. The kind extract milk from his head, clothing themselves in a rape, they drink water with the food. ये अभी जो मैंने रीडर बताई थी उसका वो सार है।
The pleasant bird is the sun. सन से जो है जो किरणें आ रही हैं, सफेद प्रकाश की किरणें, उसकी जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसे विजुअल कहा जाता है सारा उसको। और इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है भोजन ये निर्मित करते हैं प्लांट। Photosynthesis is a process during which the green plant synthesize glucose as food material from the atmospheric carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light. During this process, the transformation of the light energy into chemical energy is there, which is the source of life and food for the living organism. Today, it is also a fact that all complex organisms in cells are the products of the glucose metabolism inside the cell. It is a unique event in the history of the origin of life on the earth. It is the only source of the chemical energy, carbon skeleton of the living beings on the earth. ये सबसे बड़ा सोर्स था। इस हाथ में नीचे की ओर डार्ट बता रखा है, अर्थात पृष्ठ से क्लोरोफिल जो शेड हुआ वो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट के द्वारा शेड हुआ, और यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार हुई पृथ्वी के ऊपर। once only, once heaven was made, once only, once earth was formed, once only Krishna's milk was shed. No second after this is born. Rigved 6:48-22. It has been expressed that the history of creation, once only once the earth has taken a shape with cosmology. The Krishna's milk, Krishna's name of cow will give all the type of food. कृष्ण गाय का नाम है जो सब तरह का भोजन देती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस के तरफ संकेत किया गया है। इस फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल निर्मित होता है वही सब तरह के भोजनों का कारक है पृथ्वी के ऊपर। इसे कृषि का मिल्क कहा गया है। It has given the way for origin of life on the earth. Origin of life. एक सेल और एक डीएनए से जो है जीव जगत का विकास हुआ है, यह आज का मॉडर्न कंसेप्ट है और पुराना भी है। वेदों में भी इसका वर्णन है। और सेल को जो है कैलेस्ट्रल रेस कहा गया है, ब्रह्मांडी रेस कहा गया है, जो एक सेल से डिवाइड होकर फैलता चला जा रहा है। शुरू में एक सेल फॉर्म हुआ। और द कैलेस्टर रेस, दिस सॉन्ग ऑफ प्रेज व्हिच गिव्स वेल्थ lavishly, अर्थात कैलेस्टर रेस का अब हम वर्णन करेंगे। एक सेल का रिबूट से कहा गया है जो भोजन और वेल्थ का कारक है। एक सेल से जब कुछ नहीं था तब एक सेल निर्मित हुआ डीएनए से, और इस डीएनए में जब एक्टिवेट हो गया डीएनए फोटोन वेव के द्वारा, तो पहला अमीनो एसिड फॉर्म हुआ और डीएनए जो है डिवाइड हुआ, जिससे सेल 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होता है। सेल में डिवाइड होने की जो क्षमता है वह डीएनए के कारण है, और उसको जो भोजन प्राप्त होता है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑटोट्रॉपिक ग्लूको फॉर्म हुआ उसके द्वारा प्राप्त हो रहा है। शुरू में एनारोबिक कंडीशन थी। एनारोबिक कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हुई उसके द्वारा जो है वह ऊर्जा प्राप्त हुई सेल को, और कोएसरवेट्स का निर्माण हुआ। तो मैं आगे बताऊंगा इसको मैं आगे। Celestial race reboot is collectively called reboot from the name of reboot due to their skillful good work for the living beings. The reboot represents a mature cell. Once it has been synthesized in nature, it maintains its continuity through cell division. Accordingly, at the cellular level, all the living organisms give the same function in nature. Hence, the reboot has been described as celestial race, colloidal system, and oxidation reduction. They who far in with their mind formed horses, harnessed by a word, attained by one sacrifice. शुरू में इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं था, तब इंद्र विथ माइंड फॉर्मेड हॉर्सेस हॉर्नेड कोएसरवेट्स फॉर्म हुए, और उसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन था उसके मूवमेंट फॉर्म हुई। मूवमेंट फॉर्म उसको चार्ज प्राप्त हो गया आयंस को। तो
उसमें जो मूवमेंट्स हुए उसके कारण उसको कहा गया है इंद्र है माइंड फॉर्म्ड हॉर्सेस हार्नेस बाय वर्ड अटेंड टू वर्क टू सेक्रीफाइस। उन्होंने वेव ने जो है इसे स्टिमुलेट किया और आयंस जो है वो एक्टिवेट हुए, उनमें चार्ज आया और वो उसके अंदर रोटेट करने लगे। इससे रोटेट होने से वाइब्रेशन से जो एनर्जी फोटोन वेव उत्पन्न हुई उसे जो है डीएनए ने ग्रहण किया और डीएनए में जो है डिवीजन होने की क्षमता आई। पहला अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बना और फिर जो है पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, जो कि सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल को यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल वो कहलाता है जिसमें खाली डीएनए उपस्थित होता है लेकिन न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है उस समय तक, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना जिसे सुधन्वन कहा गया, कोएसरवेट। और कोएसरवेट से जो है प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से जो है यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। और जैसे ही ये यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हुआ जिसे कहा गया हार्सेस हार्नेस, डबल हार्स पावर आ गई। एक हार्स पावर तो डीएनए में होती है और दूसरी हार्स पावर है वो क्लोरोफिल में। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो डबल हार्स जो है वो फॉर्म हो गया, वेल डेवलप्ड सेल जो है वो फॉर्म हो गया। वो इसमें ऋग्वेद के 122 सूक्त में डिस्क्राइब कर रखा है। The reboots with effectual prayers, honest with constant labor, made their silent mother young again. Multiplication, the renewal of the parents. Multiplication, the renewal of parents का गया। सेल डिवीजन जो होता है जिससे सेल 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होता है, इसे जो है रिन्यूअल ऑफ पेरेंट्स के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। Together came your gliding drop with Indra by the Marut Ghat with the Adityas with the kings. इन सब की क्रियाओं से आदित्य इनकी क्रियाओं से इसके एक्सचेंज से विभू सेल जो है धीरे धीरे एजिंग की ओर बढ़ता है, उसका जो है वो लॉस होता है, एक्टिविटी बंद हो जाती है और सेल डेड हो जाता है, जिसे एजिंग हम कहते हैं। हमारे उसमें भी 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी, यंग और बुढ़ापा। और सेल्स जो है ये बूढ़े होते चले जाते हैं, तो इसको एजिंग के द्वारा व्यक्त किया गया है कि ये एजिंग कैसे होता है। 3 सेल स्टेज की सेल की होती है और धीरे धीरे सेल जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा अपने आप को रिन्यूअल ऑफ पेरेंट्स हो जाता है और सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाती है एजिंग के द्वारा, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज और एनर्जी वाटर का एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाता है, इसलिए सेल जो है वो डेड हो जाता है। The sacrificial ladle brought needle by the gods, Twesta's hand, DNA full ladles Yeo made their art. Twesta DNA को कहा गया है और सेल के अंदर जो सेल डिवीजन की पावर होती है जिससे सेल 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होता है, वो ट्वस्टा डीएनए के कारण होता है और इससे उसकी जो जनरेशन है वो चलती चली जाती है। और इसके एक्टिविटी सेल की एक्टिविटी से ही सेल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये कॉमन चीज है सेल के अंदर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके कारण से नेचर में श्वसन क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनता है, फूड मटेरियल बनता है। तो फूड मटेरियल से जो है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का निर्माण होता है। ये जो नेचर इसके कारण से इनरिच हो जाता है, नेचर में ये सारी चीजें जो फैलती चली जाती है। सो दे आर considered as minister and priests. They held up the
refused where they were won themselves a share in sacrifice with God. इस प्रकार से सेल का जो शेयर क्रिएशन में आया वो एक मिनिस्टर पीस के समान आया जो नेचर को इनरिच करते हैं। और ये जो स्टेटस सेल को प्राप्त हुआ ये सेल्फ एक्वायर्ड स्टेटस है। इट मींस विद देयर फंक्शन नेचर द रिबूट्स देमसेल्व्स हैव एक्वायर्ड द स्टेटस जस्ट लाइक ए फिश with a share in nature along with the natural forces. तो पहले कोसर्वेट से ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल बना और प्रोकैरियोटिक सेल से ऑटोट्रॉपिक रिबूट फॉर्म हुआ। इसको कहा गया है the holy work I wrought before is wrought again by sweetest hymn in sung to celebrate your praise. Here, O ye reboot, if the sea for all the gods set you with storm of faith, appeared with the hallowing word. सेल जो है जितने भी वेल्स पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है जितना भी नेचर इनरिच है नेचर जो फॉर्म हुआ है वो सेल की एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म हुआ है ऑटोट्रॉपिक रिबू के द्वारा फॉर्म हुआ है। और रिबू का जो अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है सेल के अंदर वो हलॉइंग वर्ड के समय हलॉइंग वर्ड जो है फॉर्म जो है उसे स्टिमुलेट करता है। हॉर्मोन वेव जो है उसे स्टिमुलेट करती है। तो ये सेल जो है वास्ट ओशन है नेचुरल फोर्सेस का। The generation of life energy set the cell on every path. It has been expressed by some upward with hallowing word. The resonant vibration waves stimulated the event to happen, and Savita granted immortality to developing cells with cell division. सविता एंजाइम को कहा गया है और हलॉइंग वर्ड से वाइब्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक वाइब्रेशंस होते हैं और पूरा सर्कुलेट होता चला जाता है। इससे सेंटर में एनर्जी विकसित होती है एनर्जी डेवलप होती है और ये एनर्जी जो है लाइफ का सोर्स है सेल के लाइफ का। अर्थात मेटाबॉलिक एनर्जी से जो एटीपी जनरेट होते हैं वो सेल को पोषित करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से ऑटोट्रॉपिक रिबू और ऑटोट्रॉपिक रिबू से यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ और जो है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा क्रिस्टा क्रियाशील हुआ और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज हुई उसको कहा गया हार्ट आउट ऑफ हार्ट। The life has evolved from single DNA with genetic recombination and cell division. The journey of life has started with the synthesis of well-developed eukaryotic cell in nature. The life consciousness appear with birth and disappear with death. It has three events: birth, life, and death on the earth. Three steed which Yama gave fifth hornet, and he the first of all hath in the mountain. In the middle ground, in the grass overshoot from out the sun, ye patient 44 sir. यम क्रोमोसोम को कहा गया है और यम जो है वो फिफ्थ हॉर्नेट है अर्थात उसके अंदर डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है जिसके कारण से कि डीएनए कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। इसलिए कहा गया फिफ्थ हॉर्नेट यम ये है फिफ्थ हॉर्नेट एंड फर्स्ट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इन द माउंटेन इन द मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड एनर्जी जिससे ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन हुई और उसे नर्व ने ग्रास किया सबसे सर्वप्रथम अर्थात प्रोटोप्लाज्म ने जो है ग्रास किया। Thou art Adi, Tritart thou by secret operation. Thou art is divided thoroughly from whom. They say thou hast three bonds in heaven and hold thee. Three bonds in heaven means जो
जीवन पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, वह यहाँ सेल डिवीजन को डीएनए नियंत्रित करता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो ये थ्री थॉर्नेस हो गया और एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर उपस्थित होती है। ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण से पृथ्वी के ऊपर जीवन है। इसलिए कहा गया कि you have three bonds in heaven that holds the three bonds in heaven से मतलब आपकी ozone layer in the atmosphere which protects the life from UV ray. To me thou since Varun, the portion there where they say is the sublimate birthplace. अर्थ है sublimate birthplace, यहाँ पोर्शन लाइफ एनर्जी उत्पन्न होती है, चेतना जागृत होती है और मृत्यु के साथ विलुप्त हो जाती है। Life is held up by triple bond of hydrogen in the cell body, which shows the sun in heaven. Life is very much supported by ozone layer, which absorbs the toxic ultraviolet rays of the water, and water H2O, which gives the life appear with birth and disappear with death of the organism. It has been said that the triple bond of the hydrogen H has the key for the DNA replication. The 3 meter the poet extended, the many formed one, the admirable, the all beholding waters, winds and herbs, these are set in the birth underway. The poet, the fundamental energy has generated the 3 meters which hold water, winds and herbs. 3 meters ozone layer in the atmosphere, H2O in water and helium on the sun. हीलियम सन के ऊपर जो रिएक्शन एटॉमिक रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा हीलियम के 3 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, इसके द्वारा बताया गया है। अब इस जो सील है, ये जो 24 कैरेक्टर वाले, ये तो था कॉस्मोलॉजी और ओरिजिन ऑफ लाइफ का। मैंने बताया कि वेदों में ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या वर्णन है। तो इस सील के ऊपर जो 36 कैरेक्टर है, 34 कैरेक्टर हैं, उसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति बताई गई है। कि जीवन की उत्पत्ति जो है सीएल डीएनए से हुई थी। यहाँ एक डीएनए बता दिया गया है, जैसे 3 बॉन्ड है, ट्रिपलेट कोड जो है बता दिया गया है। ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के ट्रिपलेट में अरेंज होते हैं, तो टोटल 64 कोड्स जो है वो बनते हैं ट्रिपलेट कोड। और एक ट्रिपलेट कोड जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, ये जो एक्टिवेट हुआ सेल के अंदर सबसे पहले कोसरवेट के अंदर, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड था। और इस डीएनए से जब धीरे धीरे ये डिवाइड होता रहा, 1 से 2, 2 से 4 में, शुरू में अपने जितने भी सेल कोसरवेट बनते थे वो बिखर जाते थे। धीरे धीरे उसको जो स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ था, कोलोइडल सॉल्यूशन जब सर्कुलेट करने लगा उस सेल के अंदर, तो धीरे धीरे उसको एनर्जी प्राप्त हुई और तो धनवन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में परिवर्तित हुआ। तो सेल के अंदर जो है राइबोसोम उपस्थित होता है। तो राइबोसोम जो है वो डीएनए कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू लाइफ। तो यहाँ राइबोसोम बता दिया है डीएनए के साथ में कि राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ। इट डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस क्रोमोसोम पेयर, सरान्यू डिसर्टेड मीन्स। तो यूकैरियोटिक सेल, और इससे जो है जब क्रोमोसोम बनना फॉर्म हो गए तो सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल जो है वो निर्मित हुआ, वो यहाँ सेल बता दिया गया है। तो Ashwin's car is housed, a well-developed eukaryotic cell has been formed. In that the hog is placed, the Ashwin's car is housed, Brihaspati has brought the cow of every event as removed with one baja on the god.
वन वजह ये स्टेज की सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं। और अश्विनस्कार हार्ट, इसका मतलब ये है कि एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो जब वेल डेवलप्ड सेल फॉर्म हो गया जिसमें डिवाइड होने की क्षमता थी, भोजन बनाने की क्षमता थी, सेल्फ डेवलप था, और वो वन वजह 3 स्टेजेस में जो है बचपन, यंग और ओल्ड स्टेज में जाके जो खत्म हो, और सेल डिवीजन के द्वारा नया वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉमन चीज है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है नेचर जो है पुष्ट होती है, ये बता दिया गया है। और अश्विन साठ से हार्ट का मतलब ये है कि यूकैरियोट सेल वजह यहाँ बताया गया है। और क्रोमोसोम इसकी स्टेज में फॉर्म होना शुरू हो गए थे, तो सराउंड रिजल्टेड ट्विंस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, the clearance and size of chromosome in pair. It has been expressed symbolically by saying that Saranyu resulted to twins pair of the chromosome. इसके बाद की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सेल डिवीजन की स्टेजेस दे रखी है कि क्रोमोसोम कैसे क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत जाता है, कैसे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज स्टेज आती है, और मियोसिस के अंतर्गत जो क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत जाता है, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो है इवोल्यूशन होता है, वह इस सेल डिवीजन के द्वारा बता दिया गया है। The sons of your well-skilled work of wondrous power brought forth like the two great mothers first of all. Two great mothers means proton and phonon. Phonon is stimulate the event and photon undergo disintegration. These are the two great mothers. सेल में 1 से 2, 2 से 4 सेल बनते हैं। ये 4 शॉट के द्वारा जो है वो सेल को बता दिया गया कि जब 2 प्रकार की सेल डिवीजन होती है, मेटाफेज और दूसरी मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन में तो जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसमें भी 1 से 2 और 2 से 4 सेल बनते हैं। और मियोसिस में जो है रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस। तो यहाँ उसमें भी जो है 4 सेल बाद में आखिर में जो है 4 सेल बनते हैं, या 4 सेल बता दिए गए और क्रॉसिंग ओवर बता दिया गया है। राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ एंड इट अंडरगो एनाफेज, और एनाफेज के मदर साइड बाय द मदर meiosis 4-cell stage बता दी। Sexual leader got newly by the got prostate and DNA 4 letters here have you made there are 4 letters form the 4 cell form हुए, ये बता दिया गया है। Fashion for the cough a mother by its side. Next reading cow food metabolism. सेल डिवीजन के साथ में जो स्टेजेस आई उसमें जो है सेल डिवीजन के साथ में जो मदर है सेल की वो तो फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन पिगमेंट्स है। तो सेल डिवीजन के सारे मदर वाज फैशन का मदर बाय साइड वो यहाँ बता दिया गया है इस कोने में अलग से। तो फैशन फॉर द काफ है मदर बाय साइड, मदर मीन्स फूड मेटाबॉलिज्म। The age wherewith the wanderer thought this option might are the two mother sons so swift and meet the swift two mother son. दो प्रकार के डीएनए होते हैं, ए फॉर्म डीएनए और बी फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म डीएनए से XX फीमेल क्रोमोसोम बनते हैं और बी फॉर्म डीएनए से XY मेल क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये जो मेल और फीमेल क्रोमोसोम होते हैं ए फॉर्म और बी फॉर्म डीएनए से बनते हैं, और इसको टू मदर्स, ये जो दो
डीएनए पास में आते हैं। ये डीएनए से एक थर्ड कोड निर्मित होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो डीएनए जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक थर्ड पॉइंट रिलीज होता है और ये ट्रिपलेट कोड जो है जनरेट हो जाता है। ये ट्रिपलेट कोड जो है वो मनुष्य की जेनेटिक आइडेंटिटी है और फोनोन वेव उसकी सोल है, जिससे जो है उसकी जीवन से प्रक्रिया जो है वो कहा गया। जो जेनेटिक आइडेंटिटी है, आपको ये बता देने में मुझे कोई ये नहीं होगा कि 99% डीएनए तो सब में सेम है, क्योंकि एक डीएनए से सारा जीव जगत अस्तित्व में आया है। 99.9% डीएनए सेम है, लेकिन 0.01% डीएनए जो है वो जेनेटिक आइडेंटिटी के रूप में होता है। और ये जो जेनेटिक आइडेंटिटी है वो मरने के बाद भी ऐसे ट्रेस की जा सकती है, जिससे अपराधी को पकड़ा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से अपराधी की पहचान होती है। ये जो आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म होती है वो यहाँ बता रखी है कि ये फॉर्म डीएनए से एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम, इससे जो डीएनए फॉर्म हुआ है वो डीएनए आगे बढ़ के इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो नया बेस फॉर्म होता है वो ट्रिपलेट बेस फॉर्म होता है, जिसे फोनोन वेव स्टिमुलेट करती है। और यह फोनोन वेव उसकी आइडेंटिटी होगी, फॉर्म हो गई है। और जेनेटिक आइडेंटिटी ये ट्रिपलेट कोड होता है जो पूरे शरीर में चलता रहता है। ठीक है Where with the statement one acquired। त्रिवेदी जी, अब समाप्त करो इसको, काफी टाइम हो गया। अच्छा, ये साढ़े वो ये दस। बता दिया मैंने टू मदर सन का। टू मदर सन जो है वो जेनेटिक आइडेंटिटी है। और ये डीएनए जो है फैलता चला जा रहा है, वो रीजर्स के द्वारा बता दिया गया है कि डीएनए जो है इंफिनिटली जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जीवन की उत्पत्ति एक डीएनए से हुई है। ये डीएनए स्टील के ऊपर बना हुआ है कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। ये डीएनए पैकेजिंग यहाँ चल रहा है। सेल के ऊपर ये डीएनए बना दिया है। ये राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ। 2009 में वेंकट रमन को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला। वो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेल डिवीजन के द्वारा अस्तित्व में आई। ये माइटोसिस और मियोसिस को बता दिया गया है। और वुम्ब में डेवलपमेंट होता है वो यहाँ बता दिया गया है। एक चीज और बता देता हूँ मैं। Life has evolved from a single DNA with genetic recombination and cell division. With Trichaduca, it purified itself. Wide ones, 6 wide ones, very late ones, Vishnu, Gayatri, the meters, all those are selling yum. Yum के अंदर सारी information होती है। और with Trichaduca, it purified itself because double bond और triple bond के द्वारा। The prolific parents and suddenly deserted twins, ये यहाँ बता रखा है। स्टील के ऊपर मेल और फीमेल क्रोमोसोम कैसे डेवलप होके कैसे मिल्क के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ये बता दिया गया है। ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, टू ट्विन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम गर्भ के अंदर कैसे योनि में प्रविष्ट होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ स्टील के ऊपर बता रहे हैं। ये एक्स वाई क्रोमोसोम
ये XX क्रोमोसोम, और ये वन क्रोमोसोम ईच मेल एंड फीमेल दे अंडरगो डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग से फॉर्म होता है। ये स्पर्म जो है एग कैसे वृद्धि करता है वो बताया गया है, और ये फर्टिलाइजेशन बताया गया है। पॉइंट ऑफ टू DNA टू मदर सन कैसे फॉर्म होता है, और डेवलपमेंट ट्रिपल लोड जो है फॉर्म होती है। 3 स्टेजेस इसके, जो गर्भ में जो इन्फेंट फॉर्म होता है उसकी 3 स्टेज होती है, बचपन, यंग और ओल्ड एज। वो 3 लोग उसमें आ जाते हैं DNA में, और ये गर्भ के अंदर इसका डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे मनुष्य में 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के, वो यहाँ बता रखे हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, और एक पेयर XX और एक Y होता है, सब मेल और फीमेल। ये गर्भ में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डेवलप था उस समय का विज्ञान, ये बता रहा है कि ये जो है 3 स्टेज से राइबोसोम ट्रांसलेट DNA कोड इनटू लाइफ, और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है गर्भ के अंदर। वो स्टेजेस, किस स्टेजेस के अंतर्गत एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ बता रखा है। और ये DNA ब्रेन के स्कैन का, जो आज टोमोग्राफी होती है ब्रेन की जो स्ट्रक्चर वो निकालते हैं, CT स्कैन ब्रेन का, उसका डायग्राम है, CT स्कैन का डायग्राम है ब्रेन का, ये 8,000 साल पुराना, वो यहाँ देखा रखा है। आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम। धन्यवाद त्रिवेदी जी। आपने अपने इस व्याख्यान में जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो चित्रलिपि है उसमें किस प्रकार से जो बायोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, DNA से लेकर के क्रोमोसोम्स और मनुष्य की उत्पत्ति तक की बात आपने उसके चित्रलिपियों में उसको ढूंढा है। और आपके अनुसार ये जो शील्स हैं इंडस वैली की, सिंधु घाटी की सभ्यता की, इन शील्स पर जो चित्रलिपि है वो किसी बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। और आपने ये भी बताया कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है जिसको लोग 3000 BC पूर्व मानते हैं, 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, यह करीब 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और ये एक वैदिक सभ्यता का ही भाग रहा है, क्योंकि वेदों में भी जो वेदों के जो मंत्र हैं, आपने बताया कि जो त्वष्टा है वो DNA है, जो यम है वह क्रोमोसोम है, और इस प्रकार से चत्वारि श्रृंगः त्रयोवश्यपादा, इन मंत्रों में भी आपने जो त्रिधा बद्धो रविति इसकी बात की, जो 3 प्रकार से बंधा हुआ रोता है वह भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की है। तो इस प्रकार से आप कहना चाहते हैं कि पूरे जो वैदिक मंत्र हैं उनमें भी विज्ञान की बातें हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उनकी बातें हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरे हैं उनमें भी इस विज्ञान को प्रदर्शित किया गया है, टंकित किया गया है उस समय के लोगों के द्वारा। और इस प्रकार से ये जो सभ्यता है 8000 वर्ष पुरानी, जो वैदिक सभ्यता का अवशेष है, क्योंकि वैदिक सभ्यता तो इससे भी बहुत पुरानी है, और ये जो अवशेष के रूप में वैदिक सभ्यता मिलती है, उस समय भी विज्ञान अति उन्नत स्तर पर विकसित था। और आपने बताया कि यहाँ पर जो जो दिमाग का वो CT स्कैन किया जाता है उसका भी ये एक चित्र है। तो इसके आधार पर आपने जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका वैदिक होना और उसकी प्राचीनता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं आज के 2 मिनट बोलूं मैं? अध्यक्ष हैं सभा के। 2 मिनट बोलूं मैं? जी जी जी। ये वैदिक सभ्यता जो है कम से कम 18,000 साल पुरानी है। 18,000 साल पहले, आज से
आज की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, ये 18,000 साल पहले पृथ्वी के ऊपर क्रिएट हुआ था। तो वेदों में ग्लोबल वार्मिंग का वर्णन है, उससे पता चलता है कि कम से कम 18,000 साल पुरानी जो है ये सभ्यता, और ये मैक्सवेल सोसाइटी का वर्क है। उन्होंने ये बताया कि 18,000 साल पहले आज के समान परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी पृथ्वी के ऊपर। जर्मन न्यूज, जी। सितंबर और ने 98। त्रिवेदी जी, जो हमारे जो वेदों के अनुसार तो जो वैदिक सभ्यता है वो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी सभ्यता है। हो सकता है क्योंकि वेदों में जो समुद्र शब्द है उसका अर्थ अंतरिक्ष है। वैदिक सभ्यता उस समय की सभ्यता समुद्री है। आकाश से मैंने बोला ना, समुद्री गर्भ। पृथ्वी पर समुद्र भी पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि समुद्र भी बहुत बाद में आए हैं। और वैदिक सभ्यता में जो पर्वत शब्द है वो इन पहाड़ों के लिए पैदा नहीं है, अभी तो वो पर्वत जो मेघ हैं, मेघों को पर्वत कहा गया है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि उस जिस समय तक ये हिमालय इत्यादि जो पर्वत हैं, ये भूमि पर इनका निर्माण नहीं हुआ था, उस समय से भी पुरानी वैदिक सभ्यता है। ये अच्छी बात है कि जो वैज्ञानिक लोग जो इस वैदिक सभ्यता को 1500 BC ईसा पूर्व मानते थे, वो आज उसके प्रमाण पीछे लेके जा रहे हैं, जो कि 18,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, कोई 25,000 वर्ष कह रहा है। परंतु जो रामायण है, रामायण का ही काल करीब 1 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व है, जिसको 24वां त्रेता युग कहा गया है। तो इस प्रकार से जो जो विज्ञान उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा, जो भारतीय परंपरा है उसके मत को पुष्टि मिलती रहेगी। और इस विषय पे ज़्यादा न कह के अब मैं आज के जो अध्यक्ष हैं माननीय आचार्य यशपाल जी, उनसे कहूँगा कि आप 2 शब्द कह करके समाप्ति का आगाज करें। आज की मीट के संयोजक हैं सम्मान्य डॉक्टर रवि प्रकाश जी, और आज का मुख्य जो विषय रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर, और इन्होंने जो शरीर हमारे चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी ने शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान और जितना भी कितना विस्तार साइंस के आधार पर दिखाया है, जो विचार रखे हैं वो सराहनीय थे इनके। बाकी ये है कि भी सृष्टि का जो एक कार्यकाल होता है, एक सृष्टि का कार्यकाल 4 अरब 32 करोड़ का होता है, इतना प्रलय का भी होता है। तो इसमें अनेक प्रकार के 4 युगों में जो ये सृष्टि बटी हुई है, समय समय पर अनेक सभ्यताओं ने जन्म लिया है। और ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो 18,000 वर्ष, कोई 8,000 वर्ष, ये अपने अपने विचार जिस प्रकार से विद्वानों के आते हैं, और लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किए हैं बहुत ज़्यादा सिंधु घाटी के ऊपर। तो विद्वानों ने अपने लेख लिखे हैं, PhDयाँ की हैं। तो ये सब के विचार बहुत अच्छे हैं। आज के इस मीट के अंदर मैं मानता हूँ श्री चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी ने अपने विचार बहुत ही विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, और इनका लेख एक सराहनीय लेख है जो कि एक प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। और आज की मीट में जो आप लोगों ने ये प्रयास करके, हमारे आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने जो प्रयास किया है और ये कर रहे हैं इस बारे में, महर्षि दयानंद की चेयर की जो स्थापना हुई उसके प्रोफेसर होने के नाते ये एक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से, ये देख करके हमें भी बड़ी खुशी होती है। और ये जो विषय, जो कार्यक्रम ये चल रहे हैं, हमारे समाज के विद्वानों के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे, मैं ये मानता हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर त्रिवेदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जो आज के अध्यक्ष थे यशपाल जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इसी में हमारे साथ जुड़े थे मॉरिशस से डॉक्टर कोमल राधा किशुन जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो अन्य हमारे दर्शक यूट्यूब इत्यादि पे जुड़े हैं, उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।